extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी. I have been a student of sociology test series at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम ट्रायम्फ आईएएस के साथ किया एंड आफ्टर दैट मैंने टेस्ट सीरीज स्टडी करी थी. Triumph IAS से भी वो हैड बीन इनक्रेडिबल बिकॉज़ मैं आती थी सर के बाद सोशियोलॉजी बहुत हेल्प हुई. तो विकास सर ने पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था. मैं सर से फ्रीक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आंसर में. मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूं सोशियोलॉजी पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप व्हेनेवर. Hello everyone, I am Ananya. I have secured All India Rank 3 in UPSC Civil Services Examination 2023. This was my first attempt at the examination, and in this third video I would like to highlight a bit about answer writing strategy for mains in general. So coming to answer writing strategy for mains, I would like to highlight the sequence in which I progressed while writing an answer. So firstly, I focused on developing the structure of an answer. Usually we tend to see that we focus on the time aspect when we are writing an answer for the first time, that we have to complete an answer in 7 minutes or so, or probably 10 minutes or so. But that I believe is a wrong strategy. The first thing that we have to check while we are attempting an answer is not even the content, not the time in which we are writing the answer, but the structure is something that becomes extremely important. So when you are seeing a question, see to it if you are able to identify the subparts that have been asked in the question, the demand that has been asked in the question, and try to formulate a structure to the question asked. I think this becomes extremely crucial, and this might take you maybe somewhere between 15 to 20 days, but once this is done, the rest parts becomes extremely easy. So try to understand the demand of the question, try to identify the subparts that have been asked in the question, and try to formulate a decent strategy, a decent structure for the question asked. And next comes the value addition or the content part. The basic content you will find it from many resources, that is the standard books, the reference books, the mains notes that you have made. But value addition also becomes extremely important for mains in order to substantiate your answer. So for this I would only like to tell that for the time aspect there is no shortcut, but to practice as many papers as possible and also to revise as many times as possible, because only with revision will you be able to incorporate whatever is there in the notes in your answers. So this is sequence of answer writing that I wanted to highlight, because I've seen aspirants confused basically, that is they focus on the time aspect first or they focus on the content aspect first rather than focusing on the structure or the demand of the aspect, but it is the other way around. Once you focus on the structure and add a bit of content and value addition to your answer, it becomes extremely easy for you to go about the process. And apart from that, I would also like to emphasize upon what are the key components in each part of in each subject. For instance, if your answer in polity is devoid of what can be called as constitutional articles or Supreme Court judgments, I don't think the examiner will be compelled to give more marks to you. The same goes with other subjects. For instance, in geography, you have to kind of incorporate some kind of maps in your answers to make it more geography kind of answer. And internal security comes with again maps, which will help you, which will help the examiner in knowing that okay, she has an idea about what the internal security challenge there is. So these are the kind of things that you have identify for each subject in each paper, and then that will help you in understanding and addressing the questions holistically. And apart from that, I would also like to highlight about the introductions and conclusions. Regarding introductions and conclusions, I believe it is extremely important for you to add value addition to your introductions and conclusions and not keep them like generic. And for that, for introductions, you can use something like a fact, something like a stat, something like a quote given by important statesman, something like a reference to a book that you have studied. All these kinds of things will help you in understanding or giving that contextuality to your answer while you are writing the answer. And coming to the conclusions, I think it becomes extremely important for you to be optimistic. Optimistic is one thing, and second thing is you can also display some sort of administrative skills at that and suggest way forward. I think suggesting way forward will give that holisticity to the answer even if it is not asked in the question. This is something that I have done this year, and I think that might have helped me. There were a number of questions in this year's mains examinations that were focusing only on the problem, that have not asked about the solutions that have to be proposed to tackle that challenge. But I kind of put myself in the shoes of an administrator and proposed some kind of solutions
solutions to the questions that has been asked, and I think that has helped me in gaining more marks, because ultimately you have to propose solutions when the problem is asked. You cannot just leave the question as it is. So in conclusions, you can add solutions, or you can also end your conclusions with something like sustainable development goals, Supreme Court judgments, or again quotes. These will be extremely helpful for you in nicely concluding your answers. So these are some of the elements that I wanted to highlight as part of the answer writing things. And also I want to highlight another one important aspect that I felt might have helped me, that is making your answers more organic. For instance, I have read a lot number of books and material for mains, and I've kind of understood the subject matter, but when I was writing my answers, I kind of made them more organic, and I did not made them more textual, in the sense that I used the terms that were more like organic, that were not very bookish in that sense, and also I proposed solutions that were practical and not solutions that were that were directly borrowed from a think tank or something like that. So this is something that is also extremely crucial in making your answers more relatable and more administrative in that sense. So that is something I think that has also helped me. And also, while you are proposing solutions, please ensure that you are not generic but very specific. So this has been a broad strategy of mine for answer writing, that is make your answers more organic, write more number of points, address all the subparts, and provide holisticity to your answer by kind of adding administrative dimension to it, that is proposing solutions, making them more specific, making them more practical, and having catchy introductions and conclusions is something that might also help you. So and for ethics also I've highlighted some other important portions that might be little different from GS 1, 2, 3. So these are all the things that I felt were what have guided me in my answer writing for mains. So yes, I would like to conclude the video over here, and these are all the 3 videos that I've addressed. One is the detailed strategy for CSE, the second is the anthropology strategy, and third is the answer writing strategy. And I would like to conclude by saying a big thank you to Delhi Knowledge Track for giving me an opportunity to interact with you all and to tell my strategy to you all. Thank you. Hello, my name is Dr. Ritika Aima. I've secured All India Rank 33 in UPSC CSE 2023 and All India Rank 186 in UPSC CSE 2022. In this video, I'll try to talk mostly about the answer writing strategy. I think ये वीडियो उनको ज़्यादा हेल्प करेगा जो घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ऑप्ट करी है विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. सी हैव गिवन 3 मेंस, 3 कंसेक्यूटिव मेंस, और तीनों बार आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज, विच मीन्स दैट माई आंसर राइटिंग वॉज डिसेंट इनफ कि मेरे को इंटरव्यू तक ले गई. एंड मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी इसके लिए फॉर द GS पार्ट, एंड ना ही मैंने कोई ऐसा टेस्ट सीरीज लगाया था विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग फॉर GS. सो आई टेल यू व्हाट आई डिड. एंड इंटरेस्टिंगली हर बार जो है मैंने एक अलग टाइप की आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी है. सो दैट ब्रेक्स द मिथ कि आंसर्स एक पर्टिकुलर टाइप से ही लिखने चाहिए, या इफ समबडी टेल्स यू कि टॉपर शीट्स में आंसर ऐसा लिखा है तो आपको भी ऐसा ही लिखना है क्योंकि उसी से मार्क्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है. क्योंकि तीनों बार मैंने 3 अलग तरह से जो है आंसर्स को टैकल किया था. सो विल बिगिन दिस एंड आई विल ऑल्सो गिव यू दिस पॉइंट कि तीनों बार मेरे ऑलमोस्ट सेम आए हैं आंसर राइटिंग में, somewhere around 405 to 410, and 3 different approaches were used. So let's begin with the first approach that I followed for CSE 2021. So उस टाइम पे मैंने नया प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मैंने भी वही किया जो सब करते हैं, टॉपर्स के आंसर्स को डाउनलोड कर लिया. आई सॉ दैट देयर इज अ पैटर्न टू इट. मैंने 2, 4, 5 कॉपीज एनालाइज करी और एक लग रहा था कि एक सिमिलैरिटी है, मतलब एक इंट्रो रहता है, एक बॉडी होती है, देन कंक्लूजन आता है. कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो उसमें कुछ जो है ऐसा दे देते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, कोई ऐसी लाइन रहती है. इंट्रो थोड़ा सा डेटा ओरिएंटेड रहता है, तो कुछ डेटा डाल देते हैं उसमें विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. देन बॉडी में जो है पॉइंट्स डालते हैं. उस टाइम मैंने देखा था दैट मोस्ट टॉपर्स यूज्ड टू पुट अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स, तो मैंने भी यही दिमाग में बिठा लिया था कि 10 मार्कर होगा तो 5 पॉइंट लिखेंगे और 15 मार्कर में कम से कम 8 पॉइंट लिखेंगे. उस स्ट्रैटेजी के साथ मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था. सो आई सेड कि आई क्लियर मेंस, तो हाँ ठीक है, हो गया था क्लियर. बट उसमें ना एक फ्लॉ था, एंड द फ्लॉ वाज दैट वाज वेरी मैकेनिकल. तो जब मैं अपना आंसर खुद एनालाइज किया ना बाद में, तो आई रियलाइज कि ऐसा लग रहा है कि मतलब बस पॉइंट डाले हुए हैं, और जैसे कि कोई रट के आया हो तो वो ऐसा आंसर लिखेगा. मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें दिखती नहीं है. तो फिर सेकेंड टाइम व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड टू फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन शोइंग माई कॉन्सेप्ट कि मेरे को आता है तो कितने अच्छे से आता है, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लिख लिया.
डायग्राम बहुत सारे डाले थे मैंने सेकेंड टाइम। वो भी मैंने किसी टॉप पे आंसर राइटिंग में देखा था शायद, कि डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स जो है वो दिखाते हैं आपका कि हाउ यू आर एबल टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन एक्सेट्रा। तो वो वाला अटेम्प्ट मैंने ऐसे दिया, जैसे हर क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी में देयर वुड बी अ मैप, अगर इकोनॉमी का कुछ है तो उसमें डायग्राम का स्कोप नहीं है बट देयर वुड बी अ फ्लो चार्ट, अगर साइंस एंड टेक का है तो उसमें साइंस एंड टेक में तो कुछ ना कुछ डायग्राम इनोवेटिव सा क्रिएटिव सा यू कैन कम अप विद। तो ऐसे करके किया, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आए, बट देन अगेन आई डिड नॉट एंजॉय दैट प्रोसेस। So this time what I did different is, and what I think everybody should do from the beginning is, find your own strength and weakness. So with respect to this, let's begin with some of the very important questions जो हमारे मन में होते हैं when we start answer writing. तो पहला होता है when should you start answer writing. Mostly क्या होता है, जो young या new aspirants हैं तो हम pre को लेके इतना परेशान रहते हैं कि we start answer writing only after we clear the prelims, क्योंकि हमको लगता है कि अगर pre ही नहीं हुआ तो mains का पढ़ के क्या करेंगे। But that's a very wrong strategy because that will waste one whole year of your preparation. मान के चलो कि आपने प्री निकाल लिया, अब आपके पास 3 महीने हैं मेंस के लिए, और आपने अब मेंस की तैयारी शुरू करी है, तो आप मेंस तो नहीं निकालेंगे, और अगर निकाल भी लेते हो तो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रैंक एंड यू विल बी स्टक इन दिस प्रोसेस, क्योंकि अगला पूरा साल जो है आप उस मेंस की तैयारी में, फिर इंटरव्यू की तैयारी में, या फिर आफ्टर मेंस आपका नहीं हुआ तो थोड़ा सा उससे आप परेशान हो जाते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, तो देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग एंड ओवर एनालाइजिंग योर सेल्फ। तो वो ना एक अजीब सा एक होता है, एक लूप होल जैसा, इसमें आप फंस जाते हो। तो वट यू शुड रादर डू इज, पहले अपने आप को ना टाइम देना है इस एग्जाम में। इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स, और तीनों अलग है और तीनों की स्ट्रैटेजी भी अलग है। तो प्री की स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट देन मेंस, विच इज डिफरेंट देन योर इंटरव्यू। तो हर एक को समझते हुए आराम से टाइम देते हुए चलो, एंड बिफोर यू इवन अटेम्प्ट योर प्रीलिम्स रिमेंबर यू शुड बी मेंस रेडी, because you cannot get mains ready between the prelims and mains wala 3 months. You have to be mains ready, then you give prelims. Prelims is a much more uncertain game because that one day वो दो घंटे आप बैठते हो पेपर देने, lot of things might not go in your favor. तो हो सकता है कि आपको आता है, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आपका प्री ना हो, वो थोड़ा सा लक बेस्ड भी होता है। बट मेंस में ना लक कम हो जाता है एंड योर हार्डवर्क को दिखाने का पोटेंशियल इज मच हायर। तो अगर मैंने मेंस में अच्छे से तैयारी करी हुई है तो हो सकता है मेरा इस साल प्री ना हो, नेक्स्ट साल हो जाए, लेकिन जब भी होगा तो देन आई विल एनकैश दैट अपॉर्चुनिटी। सी मेंस लिखना अपने आप में ना एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी की बात है, और आपको जब भी मिलेगी तो यू शुड बी एबल टू एनकैश इट। मतलब उस बार तो आपको सबसे बढ़िया ही करके आना है बिकॉज आपको वो मौका मिला है। तो इसमें व्हेन टू बिगिन में ये है कि स्टार्ट योर आंसर राइटिंग एज सून एज यू आर डन विद योर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सपोज मैं अगले साल का मेंस देना चाहती हूँ या अगले साल का अटेम्प्ट देना चाहती हूँ फॉर दैट मैटर, तो अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूँगी इस साल, अब मेरे पास इनफ टाइम है, इस 5-6 मंथ्स, एंड देन नेक्स्ट जनवरी से आई विल फोकस 2-3 मंथ्स एक्सक्लूसिवली ऑन मेंस आंसर राइटिंग, एंड उसके बाद मेरे को 2-2.5 महीने चाहिए सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए। लेकिन प्री ओरिएंटेड पढ़ाई से पहले मैंने मेंस का सिलेबस कर लिया होना चाहिए, मैंने अपना ऑप्शनल अच्छे से कर लिया होना चाहिए, मैंने मेंस की आंसर राइटिंग कर ली होनी चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन्स कि आंसर राइटिंग कर लेनी है, तो कितनी आंसर राइटिंग करनी है। से इफ यू हैव अ गुड 1 मंथ कि मैं ये 1 मंथ मेंस को देने वाली हूँ, आप सुबह कुछ पढ़ लो या आप शाम में पढ़ लो, बट कीप अ सेपरेट टाइम ऑफ द डे 1 to 2 hours एटलीस्ट जस्ट फॉर आंसर राइटिंग, और इसमें हो सके तो 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे कर लो। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड दे बी, क्या ये PYQ होना चाहिए, या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं, एवरीडे मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन वो देते हैं, दैट इज़ योर विश, बट आइडियली आई वुड से स्टार्ट विद द PYQs, क्योंकि UPSC PYQs आपको बताता है कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या आएगा। वंस यू आर डन विद PYQs ऑफ से लास्ट 8 to 10 years, देन आपके पास टाइम है तो प्लीज गो एंड डू द कोचिंग वाले क्वेश्चंस ऑल्सो। सो वन वेरी लास्ट थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इन आंसर राइटिंग इज कि कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं हमारे मन में। व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे पास भी बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है क्या उसी पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन मिल जाती है। तो आई यूज्ड टू थिंक कि एवरीबडी एल्स इज डूइंग दैट, तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई जस्ट यूज टू टेक अ A4 साइज पेपर, मैं उस पर प्रिंट करा लेती थी घर में ही, वो जो ग्रिड पैटर्न रहता है आंसर बुकलेट का, टू गेट इन द हैबिट ऑफ कि कितना मार्जिन कहाँ से रहता है। लेकिन बस इतना ही है,
यू सी इट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. तो आपको लगता है कि मैंने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो मैं आंसर राइटिंग हॉल में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहूँगी, तो फिर आप वो बुकलेट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल आपकी इच्छा है. सेम अप्लाइज टू द पेन ऑल्सो. लास्ट टाइम आई रोट विद अ सिंपल बॉल पेन क्योंकि मेरी फ्लो आंसर की उसमें ज़्यादा अच्छी आ रही थी. आई वॉज एबल टू राइट एट अ मच फास्टर स्पीड, गॉट ऑलमोस्ट सेम मार्क्स. इस बार ही आई डिड अ V7. आई थॉट कि मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है तो मैं पायलट V7 से भी अच्छा लिख रही हूँ एंड उसकी थोड़ा सा नीटर अपीयरेंस रहती है, थोड़ा सुंदर दिखता है पेपर पे. तो आई ट्राइड V7, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम मार्क्स रहे हैं. दी ओनली डिफरेंस इज आपको जो सूट करता है पेन आप उसको यूज़ करो. एंड द पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दिस इज कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता. सो डोंट गेट बॉदर्ड कि मेरा पेन ब्लैक यूज़ कर रही हूँ या ब्लू यूज़ कर रही हूँ या कौन से टाइप का है, इससे इतना मैटर नहीं होता. वॉट मैटर्स इज जब आंसर को देखते हो ना अपने पेपर पे, आंसर दिखता कैसा है, एज इन क्या इंडेंटेशन है, क्या फॉर्मेटिंग है. मतलब जब आप कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हो क्या आप वो 3 फिंगर स्पेस छोड़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पेपर नीट दिखता है. अगर मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ तो क्या मैं एकदम मार्जिन से सटा के लिख रही हूँ या थोड़ा सा गैप दे के, थोड़ा सा जो है लाइनिंग के बीच में भी स्पेसिंग रख के, वो चीज़ें सुंदर दिखती हैं. तो आंसर को लाइक वी ऑलरेडी सेड रीडेबल बनाती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, जहाँ पे कि 10,000 आंसर्स चेक हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक हो रहे हैं, लिमिटेड टीचर्स रहते हैं. तो उनको भी इतने सारे पेपर देख के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट ह्यूमन एरर हो जाए, दैट इज़ वो हर एक पॉइंट को ना देख पाएँ, कोई पॉइंट्स उनसे मिस हो जाए, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स में वो अफेक्ट करें. सो मेकिंग श्योर दैट ऑल योर पॉइंट्स आर रीडेबल. ज़रूरत पड़ने पे अंडरलाइन कर लिया, हेडिंग दिए तो उसको बॉक्स में डाल दिया, कोई फिगर बनाया तो उसको सुंदर से बॉक्स में डाल दिया. ये छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है कि ज़्यादा नहीं तो पर पेपर आपके 2 ही नंबर बढ़ जाएँ, तो से 8 पेपर है तो 16 नंबर बढ़ जाएंगे. तो इट मैटर्स एट दी एंड. तो कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो अपना बेस्ट हर जगह दें, दैट इज़ आंसर की क्वालिटी में भी, आंसर के कंटेंट में भी. एंड अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का ये है कि आपको खुद को देखना है कि आपके आंसर कैसे दिख रहे हैं, आपके आंसर में पॉइंट्स कितने आ रहे हैं. एंड देयर इज़ नो गोल्डन रूल टू इट. आई थिंक यू हैव टू बी बेस्ट इन योर ओन वे. वो आप ही सबसे अच्छा जज कर सकते हैं. एंड दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट. If you want, you can always get your friends and family to evaluate it. But at the end, you know, it is your exam. And कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप अपने आप को बेस्ट समझ जाओगे, evaluate करना सीख जाओगे. So please start answer writing and best of luck with that. Thank you. Hello everyone. So this is Thakur Anjali Ajay here. और मैंने इस बार UPSC CSE 2023 में AIR 43 रैंक हासिल की है. तो मैं आज बात करने वाली हूँ आंसर राइटिंग की. और आंसर राइटिंग जो है वो आपके मार्कशीट का मेन हिस्सा होता है, क्योंकि 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें से प्री में रिजेक्शन रेट काफ़ी हाई है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाता है, पेपर चेंज हो रहा है. सो बिगिनर्स के लिए आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए मैं इसकी बात करूँगी. मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा. और ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद आप सोचो तो आपको लगता है कि शायद आप ना लिख पाओ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. तो आप क्या करिए, मैंने ऐसा किया था कि मैं PYQs को उठाती थी और उसको पढ़ती थी, सर्च करती थी, और 2-3 साइट से, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज है आपके पास. फॉरम के अच्छे आंसर्स होते हैं, दृष्टि IAS के आंसर्स होते हैं, तो आप उस पर जाइए, उसको रीड करिए और फिर आप उसको समझिए. समझने के बाद फिर आप उसको आंसर अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखिए. और ये पढ़ने और लिखने के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप रखिए. जैसे मान लीजिए मैं क्या करती थी, मैंने आज रात क्वेश्चन ढूंढा कि मुझे क्वेश्चन क्या लिखना है, देन मैं उसके आंसर ढूंढती थी, आंसर पढ़ती थी और अगले दिन मैं उसको लिख देती थी. और ये गैप रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको मेमोराइज करके ना लिखो, क्योंकि जब आप मेमोराइज करके लिख दोगे तो आंसर राइटिंग का जो मेन पॉइंट है, फंडामेंटल पॉइंट है, वो पर्पज ही खत्म हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से आपको याद नहीं करना चाहिए. बट येस, टू मोटिवेट योर सेल्फ टू स्टार्ट विथ, ऑफ कोर्स यू कैन रीड. आप रीड करके लिखिए, ताकि क्या होगा, 1 महीने में आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे डायमेंशन तोड़ते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कैसे कंक्लूजन लिखना होता है. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के मल्टीपल वेज है, वो आपको समझ में आ जाएगा. तो टू स्टार्ट विथ, प्लीज गो एंड रीड. आप रीड करके लिखिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए, ताकि आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर पाओ. वरना स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे. अगर शुरू से ही खुद पे हार्श हो जाओगे कि खुद ही लिखना है, वरना क्या पॉइंट हुआ, तो नहीं कर पाओगे. मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ये रास्ता अपने लिए चूज किया था.
देन अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट्स कैसे आए, तो हमेशा जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो हमारे आंसर्स होते हैं वो ओवरऑल मोर और लेस सिमिलर से होते हैं। तो देर आर सम यू हैव टू ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट और स्पाइसेस इन योर आंसर ताकि वो थोड़ा सा अलग हो जाए। अब वो पिंच ऑफ सॉल्ट और स्पाइसेस क्या है? आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप कहाँ से लोगे? न्यूज़पेपर से। मैं कुछ चीज़ें करती थी, फैक्ट लिखना, चार्ट्स बनाना। चार्ट जो होते थे मेरे बहुत सिंपल होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे NFHS का डेटा था कि स्टंटिंग इतनी % है, वेस्टिंग इतने % है, अंडर न्यूट्रिशन इतना % है। तो इन डेटा को जब भी मैं माल न्यूट्रिशन वाला आंसर लिखती थी तो मैं इसको कोट करती थी। तो आप या तो दो तरीके, या तो आप सिंपली लिख लो कि NFHS के हिसाब से ये चीज़ें हैं। मैं क्या करती थी, एक बार डायग्राम बना देती थी कि ओके 7% ये है, 35%, 19%, ऐसे बार डायग्राम से मैं दिखा देती थी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशन और ऊपर % बार डायग्राम। तो मैं ये चीज़ें करती थी। पाई चार्ट बना सकते हो आप कि आपने कुछ % कुछ हिस्से काट के वहाँ पे दे दिए कि ये है, ये है। देन मैप्स बनाइए, जहाँ भी लगे आपको इंडिया का मैप बनाइए। इंडिया के मैप को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि 10 सेकेंड में आप मैप को बना लो, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लो और उसको बना के उसमें चीज़ें आपको नोटिफाई भी करनी है, वरना वो मैप कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब GS 1 का क्वेश्चन था एक कि ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिखना तो था, बट मैंने फिर वो मैप भी बनाया था जहाँ से सिल्क रूट को दिखाया था, पोर्ट्स दिखाए थे कि लोथल है और फिर मुजीरी पोर्ट है। तो ऐसी चीज़ें क्या है आपके आंसर को अच्छा बना देगी। GS 3 में एक क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक क्राइम्स या मल्टीपल क्राइम्स अक्रॉस कोस्ट जो होते हैं वो बताना था, सिक्योरिटी का क्वेश्चन। तो मैंने एक मैप बनाया था जिसमें कोस्ट दिखाया था इंडिया का और वहाँ पे दिखाया था कि ये जो है ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पे पायरेसी होती है और यहाँ से जैसे 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई वाले एरिया में, आप वो दिखा सकते हो एक छोटा सा एरो करके। तो ऐसी चीज़ें आपके आंसर को एक्स्ट्रा अच्छा बनाएगी। यही है जो पिंच ऑफ स्पाइसेस और सॉल्ट की बात मैं कर रही थी। फिर आप न्यूज़पेपर को एक अपना अच्छा सोर्स बना सकते हो इन चीज़ों को ऐड करने के लिए। जब मेंस की प्रिपरेशन में कर रही थी तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और पेपर से मैं क्या करती थी, मैंने एक एक्स्ट्रा शीट बना रखा था, एक एक्स्ट्रा नोट पैड बना रखा था जिसमें मैं चीज़ें ऐड करती थी, एग्जाम्पल्स लिखती थी पेपर से। और फेमस पर्सनालिटीज, अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है कुछ करंट इवेंट को लेकर, तो आप उसमें वो लिख सकते हो, जो मैं कोट करती थी एग्जाम हॉल में भी। जैसे S जयशंकर जी ने बहुत सारा स्टेटमेंट दिया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स दिए थे रशिया यूक्रेन के बारे में और जो भी आसपास चीज़ें हो रही हैं, तो आप उनको डायरेक्टली अपने एग्जाम में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन्स में इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा था कि विदाउट ट्राइबल डेवलपमेंट वी कांट इमेजिन नेशनल डेवलपमेंट। तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, और क्योंकि मुझे पता है ट्राइबल्स जो है वो सोशियोलॉजी में भी एक पार्ट है, GS 1 में भी है, GS 2 में भी है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को कहीं भी इस्तेमाल कर पाओगे और बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वो स्टेटमेंट लिखोगे तो उस स्टेटमेंट को आप बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशिएट करके लिख रहे हो, उसमें एक वेट पुट कर रहे हो। मैं यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ें आपके आंसर्स को अलग बनाएगी। थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा डाल के आप थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर पाओगे और क्यूमुलेटिवली आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। छोटा सा चेंज मैंने और किया था कि मैंने पेन बदल लिया था। आप जेल पेन के साथ जा सकते हो क्योंकि जेल पेन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता है और उससे आप स्पेस को फिल करने में ज़्यादा आसानी होती है बॉल पेन के मुकाबले। बट पेन का इतना रोल नहीं होता। ऑफ कोर्स आपके कंटेंट, आपकी हैंडराइटिंग, ये सब ज़्यादा मैटर करती है कि आप नीट एंड क्लीन लिख रहे हो या नहीं। फिर जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि जब आप आंसर लिखते हो, तब आप एग्जाम हॉल की बात कर रही हूँ मैं, जब आप एग्जाम हॉल में आंसर लिखते हो तो आपको अंडरलाइन करना चाहिए क्वेश्चन पेपर पे। मैं क्या करती थी, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मैं अंडरलाइन या सर्कल कर रही हूँ और वहाँ पे लिख रही हूँ 1, 2, क्योंकि कई बार आप एक क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं और आप 1-2 एस्पेक्ट मिस कर जाते हो लिखते लिखते, तो आप वो एस्पेक्ट पहचानने के लिए वहीं पे नंबर्स लिख सकते हो। मैं क्या करती थी, क्वेश्चन पढ़ती थी और जैसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज दिस एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट कैन वी डू टू रिफॉर्म, टू मेक सम रिफॉर्म और चेंजेस इन इट। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए इसमें, 3 सब पार्ट कि व्हाट इज दिस फर्स्ट, सेकेंड कि हाउ टू, सेकेंड क्या है कि व्हाई दिस इज लाइक दिस सेकेंड, एंड हाउ टू इम्प्रूव,
तो आप ऐसे 3 डायमेंशंस में उसको तोड़ के नंबर लिख के वहां पे काम अपना खत्म कर सकते हो। और मान लीजिए मुझे वो पढ़ते टाइम लगा कि मैं इसमें एक डायमेंशन वे फॉरवर्ड का ऐड कर सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ, तो मैं वहां पे फोर्स लिख के लिख देती थी WF वे फॉरवर्ड। तो इसमें मैं क्या करती थी, लिखते लिखते क्वेश्चन को देखती थी और देखते देखते मुझे रियलाइज होता था कि ओके मुझे कहाँ खुद को रोक लेना है, कितने टाइम पे खुद को रोक लेना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप अपना ट्रैक रखोगे हर क्वेश्चन में तो पेपर छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पेपर आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, आपसे भले ही लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट प्लीज आप क्वेश्चन कोई मत छोड़िए, क्वेश्चन को लिखिए अच्छे से। एंड जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तब मैं कहूंगी कि प्रायोरिटाइज करके लिखिए। जैसे मैं लिखती थी 11 to 20, जो भी 15 मार्कर है वो पहले लिख देती थी एंड देन 10 मार्कर पे जाती थी। तो 10 मार्कर में मैं प्रायोरिटाइज करके लिखती थी। जैसे ऊपर से थोड़ा बहुत देख लेती थी मैं, तो उसमें मान लीजिए कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही नहीं आते या फिर आपको उसमें बीटिंग अराउंड द बुश जैसी बात है वो करना पड़ेगा। लाइक पूछा था कि बायोडिग्रेडेशन वाला कोई क्वेश्चन था, ऑयल जैपर एक्सेट्रा वाला कुछ क्वेश्चन था, ये बायोडिग्रेडेशन वाला क्वेश्चन था GS3 में। मुझे उसमें ज्यादा कंटेंट आता नहीं था तो मैंने उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखा था। सो ऐसे 1-2 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आप क्लूलेस हो उसको बाद में रखो, क्योंकि बाद में अगर आप अच्छे क्वेश्चन रखोगे तो हो सकता है कि आप रिस्क ले रहे हो, वो अच्छा क्वेश्चन जो आपको आता है वो आपसे छूट जाए और आपके 1-2 मार्क्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ओवर द टाइम 3 अटेम्प्ट में मैंने सीखा है। फॉर्चुनेटली मेरे तीनों मेंस क्लियर हुए, बट शुरू के 2 अटेम्प्ट में थोड़े कम मार्क्स हुए थे और इस बार इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैंने प्रैक्टिस की तब मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट सीरीज, कि आप टेस्ट सीरीज में क्या कर सकते हो, कौन कौन से टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो टेस्ट सीरीज जो है वो अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, आपको हेल्प करेगा। तो टेस्ट सीरीज में कुछ टेस्ट सीरीज जैसे कि फॉरम IAS की टेस्ट सीरीज अच्छी है, विजन का अभ्यास अच्छा है। मैंने नेक्स्ट IAS के पेपर्स लिखे थे, मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो गया था। फॉरम के कुछ पेपर्स मुझे मेरे फ्रेंड्स से अवेलेबल हो गए थे, तो मैं खुद ही लिखती थी और खुद ही इवैल्यूएट करती थी, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बात की, मैं जब आंसर राइटिंग करती थी तो मैं खुद पेपर को लेकर बैठती थी और उसमें पॉइंट्स ऐड करती थी। सो द पॉइंट ये नहीं है कि आपको कोई इवैल्यूएट करके दे, आपको कोई बताए कि इतने मार्क्स आ रहा है। ऑफ कोर्स कोई है करने वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि जब आप आंसर लिखते हो या फिर जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आओगे। इंप्रूवमेंट इन द सेंस एक्स्ट्रा फॉर्डर पॉइंट्स, एक्स्ट्रा कंटेंट आप रिवर्स लर्निंग से सीखते हो जब आप टेस्ट लिखते हो तब। तो मैं उसको खाली लर्निंग के हिसाब से लिखती थी और उनके मॉडल फॉरम IAS के मॉडल आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनमें से मैं रिवर्स लर्निंग करके बहुत चीज़ें सीखती थी, अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसने मुझे हमेशा हेल्प करी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हेल्प करेगी। सो बस इतना ही था आंसर राइटिंग में। थैंक यू सो मच। Thank you to DKT Team Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. My name is Tanuj Pathak, and this year in CSE 23 I have secured All India rank of 72. I belong to a city called Haldwani, which is situated in Nainital district of Uttarakhand. And in this specific video, we'll be talking about answer writing, which is a very important part in mains examination. तो स्ट्रक्चर की बात करता हूँ आंसर राइटिंग के, तो पहली चीज़ आपका इंट्रोडक्शन रहता है, देन विल राइट द बॉडी एंड फाइनली विल राइट द कंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं IBC फॉर्मेट ही रहेगा आंसर राइटिंग का। अब थोड़ा स्पेसिफिक से बात कर लेते हैं एंड विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए वो बाकी लोगों से, और इट शुड कैच द आई ऑफ द एग्जामिनर। तो इसके लिए मोस्टली मैं क्या करता था कि कुछ यूनिक चीज़ डालने की कोशिश करता था अपने इंट्रोडक्शन में इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फैक्टर फिगर से स्टार्ट कर सकते हैं। GS3 में इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, काफ़ी जगह अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन स्टार्ट विद डेटा।
पॉवर्टी का क्वेश्चन हो गया, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो गया, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद डेटा। उसके अलावा यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकल्स। फॉर इंस्टेंस इन GS2 आर्टिकल्स आर अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। फॉर एग्जांपल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन आ गया तो यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकल 44। और उसके अलावा स्टार्ट करने का तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिफाइन कर दिया जाए। हालांकि काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, बट आई गेस इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट एनी आंसर, क्योंकि इससे पता रहता है एग्जामिनर को कि यू नो द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। तो दूसरा तरीका इंट्रोडक्शन का वो रहता है। तो हम थोड़ा बॉडी पे डिस्कस करते हैं। तो बॉडी पे मुझे 2-3 चीज़ें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहला है यूज़ ऑफ राइट हेडिंग, और हेडिंग से मेरा मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन के ही वर्ड उठा के यू ट्राई टू मेक एन हेडिंग एंड देन आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप उन्हीं वर्ड जो हेडिंग जो क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे गए हैं उन्हीं को हेडिंग में यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर को पता है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर सही में आता है। तो दैट इज़ हाउ यू शुड यूज़ द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। उसके बाद ट्राई टू गिव 2 to 3 हेडिंग्स टू एन आंसर, क्योंकि आपका आंसर थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में 2 से 3 पार्ट होते हैं। तो ट्राई टू गिव ऑल द आंसर सेपरेटली अंडर अ डिफरेंट हेडिंग, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपने हर एक पार्ट को एड्रेस किया है और आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा पार्ट ये। तीसरा बॉडी पार्ट में ये भी करता था कि अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करता था, बाय विच आई मीन कि मैं चाहता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में अपने आंसर में लिख सकूं, ताकि थोड़ा आंसर भरा भरा दिखे, थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा लगे आंसर की, और एक अच्छा इम्पैक्ट जाए एग्जामिनर के माइंड के ऊपर। तो दूसरा ये चीज़ रहती थी। उसके अलावा विल टॉक अबाउट सम वैल्यू एडिशंस जो कि आंसर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं हूँ, आप हैं, हम सब लोग हैं, मोस्ट ऑफ आवर सोर्सेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं। तो व्हाट मेक्स आवर आंसर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर इज द वैल्यू एडिशन। By value addition I mean we'll go paper GS by GS. तो GS1 में most of the time you have an ample scope of making diagrams, चाहे वो हिस्ट्री में हो चाहे वो ज्योग्राफी में हो। तो इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप बनाने का बहुत ज़्यादा हाई स्कोप रहता है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है GS1 में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे मैं डायग्राम बना गया था इंडिया का या वर्ल्ड का या कोई और फ्लो चार्ट वगैरह। तो यू शुड लुक फॉर डायग्राम्स इन GS1। सिमिलरली GS2 में अगर वैल्यू एडिशन की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। जितना मैक्सिमम हो सके आप आर्टिकल्स लिखें। हर एक क्वेश्चन में ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर आर्टिकल्स, जितने आपको याद आ रहे हैं यू शुड इंक्लूड। सेकेंडली द थिंग दैट यू शुड इंक्लूड इज द सुप्रीम कोर्ट केसेस। नाउ मूविंग ऑन टू GS3। अगर मैं GS3 वैल्यू एडिशन की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन इन GS3 कम्स फ्रॉम द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो डेटा हम कोड करते हैं। GS3 आपको पता है इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें डेटा कोड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर क्वेश्चन में। उसके बाद अगर मैं GS4 का वैल्यू एडिशन की बात करता हूँ तो GS4 में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है वैल्यू एड करने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने गुड लीडरशिप शो करी है, जिन्होंने गुड वैल्यूज शो करी हैं अपने वर्क में, उनका एग्जांपल देना। पॉलिटिकल लीडर्स का एग्जांपल देना, स्पोर्ट्समैन का एग्जांपल देना, या इनफैक्ट हमारी मैथोलॉजी से कोट करना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कुछ अच्छी वैल्यूज, कुछ कैरेक्टर्स ने शो करी है। तो यू शुड रिचली इंक्लूड दीज एग्जाम्पल्स इन योर GS4 आंसर्स। उसके अलावा GS4 आंसर्स में यू कैन यूज कोट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 50-60 कोट्स। वैल्यू एडिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एक नंबर हर एक आंसर में ज़्यादा चाहिए तो दैट विल कम फ्रॉम वैल्यू एडिशन इटसेल्फ। और एक नंबर बढ़ के जब क्यूमुलेटिव होता है तो 20 नंबर बढ़ते हैं एक पेपर में, और अगर हम 7 पेपर में बोलूँ तो कहीं ना कहीं 100 से 140 नंबर बढ़ने की संभावना आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए वैल्यू एडिशन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। हर एक स्टूडेंट ये कोशिश करता है कि अपने आंसर को रिचली डेकोरेट करे वैल्यू एडिशन के साथ, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ, डायग्राम्स के साथ। तो यू शुड ट्राई टू इनकलकेट ऑल दीज वैल्यू एडिशंस इन योर आंसर्स, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन हो सकें। उसके बाद विल टॉक अबाउट कंक्लूजन। इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन, विल मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। मुझे फील होता है कंक्लूजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर। वाई? क्योंकि जो एग्जामिनर मार्क्स दे रहा है वो आपके कंक्लूजन पढ़ के ही दे रहा है। तो पहले 2 अटेम्प्ट में मैं भी यही गलती करता था कि कुछ भी रैंडम कंक्लूजन लिख के आगे बढ़ जाता था, ज़्यादा सोचता नहीं था।
बट इस बार मैंने थोड़े चेंजेस लाए उसमें, और मैं क्या करता था जनरली जब मैं कंक्लूजन में पहुंचता था तो आई यूज टू रीड द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता था और देन आई विल फ्रेम माई कंक्लूजन, ताकि मेरा कंक्लूजन टू द पॉइंट रहे, क्वेश्चन के रेलिवेंट रहे और एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो मैंने अपना क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आई यूज टू राइट कंक्लूजन इन 4 to 5 लाइन्स, जिसमें 1-2 लाइन्स में समरी होती थी और 1-2 लाइन्स में फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में दिखाता था कोई भी चीज़ को लेके। तो ये बेसिक मुझे लगता है पार्ट्स होते हैं आंसर राइटिंग के। नाउ विल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आंसर राइटिंग भी एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे ही आप इंक्रीज करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जब आपका 3 से 4 महीने आपके स्टडीज़ में हो जाएं, आप एक बेसिक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि हाँ भाई एग्ज़ाम में ये आता है, ये सिलेबस है, ये पढ़ चुका हूँ मैं, ये पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद देन ट्राई टू स्टार्ट राइटिंग आंसर। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं मार्केट से, उसके आंसर लिखना चालू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कोई आप मेंटोर, आपका जो कोई मेंटोर है उसको आंसर लिख के भेज सकते हैं, उससे चेक करा के आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा एक तरीका होता है, जैसे आपने टॉपर्स की आंसर कॉपी ली, जो उन्होंने आंसर लिखा है आपने वही आंसर लिखा और फिर दोनों आंसर को मैच किया और देखा कि कितना ज़्यादा अंतर पड़ रहा है आपका इस आंसर और इस आंसर में। तो जब आप देखेंगे कि हाँ भाई इन क्वेश्चन में इतना डिफरेंस है, तो यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ें हैं। और आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि रोल ऑफ मेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कई बार हमको अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखती है और जो कि दूसरे को जो एक्सपीरियंस है उसको दिखती है। तो लकीली इस बार 2 साल से आई डोंट हैव बहुत सारे मेंटर्स, पर लकीली इस बार मैं सचिन जैन सर हैं जो इंश्योर IAS वाले हैं, तो मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली इस बार अपने आंसर को सुधार करने में। तो मेंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं क्या गलतियाँ करता था, कैसे अपने आंसर को छोटे फॉर्म में लिख सकूँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। मैप्स, फ्लो चार्ट्स को कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ मैं अपने आंसर्स में, वो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। किस टॉपर कॉपी को रिकमेंड देखना चाहिए कि आपके आंसर इंप्रूव हो सके, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटर का रोल। और जैसे कुछ मेंटर्स ऐसे होते हैं जैसे जो खुद या तो क्रैक कर चुके हों UPSC, या फिर जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हों एटलीस्ट, तो ऐसे मेंटर्स ढूंढिए जो एग्ज़ाम खुद क्रैक कर चुके हैं या फिर जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया रहता है कि चीज़ों के बारे में। तो I would thank Sachin Jain sir and his team of Ensure IAS for helping me throughout this journey, especially mains answer writing की। और I think मुझे यही कहना था इस वीडियो में कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वैल्यू एडिशन कैसे हो सकते हैं और कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है मैंने अपनी सारी बात कह ही दी है, और यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा आंसर राइटिंग की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा आपका मार्क्स में आंसर राइटिंग। और कहीं ना कहीं अगर 1750 में यू आर एबल टू स्कोर 800 अबव नंबर इन मेंस, तो ये तो शॉर्ट है कि आपका नाम लिस्ट में होगा। और आपने बहुत प्रैक्टिस करी है एंड यू रीच 820 830, देन हाईली प्रोबेबल यू विल गेट IAS एज अ सर्विस। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, उसको चेक कराइए मेंटर से, खुद को इम्प्रूव करिए, एंड आई होप यू ऑल गेट थ्रू वन डे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माना चौहान है। इस ईयर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 84 आई है। मेरे इस ईयर GS में मार्क्स 425 रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी GS आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी, मेरी क्या अप्रोच रहती थी, वो शेयर करूंगी। मैंने GS के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, तो मैं कैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी सबसे बड़ा चैलेंज है आंसर राइटिंग में, वो है सिलेबस को ब्रेक डाउन करना या सिलेबस को लिमिट करना। तो द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट लिमिटेशन। इसके लिए आप सबसे पहले जो भी लास्ट 10 इयर्स के मेंस के PYQ हैं उनको अच्छे से एनालाइज करें। आप जो भी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनके लास्ट 10 इयर्स के मेंस के PYQ चेक करिए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक किन किन डायमेंशंस में पूछा गया है और कितनी डायरेक्शन में पूछा गया है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा आपको अपना मटेरियल लिमिट कितने हैं
एंड तक करना है, बिकॉज हर टॉपिक के लिए एंडलेस रिसोर्सेज हैं, बट हमें ये माइंड में रखना है हमेशा जब भी कोई भी कंटेंट पढ़ें कि हमारे पास 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है एंड 7 मिनट्स एंड 11 मिनट्स की टाइम लिमिट है। तो हम जब भी कंटेंट पढ़ें उसे एक कंसाइज वे में पढ़ें। तो हर टॉपिक के ऊपर हमारे पास प्रीवियस 3 पेजेस का बेसिक मटेरियल होना चाहिए एंड उसी मटेरियल में ही आप जो भी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपना मटेरियल ज्यादा स्प्रेड मत कीजिए बिकॉज वो फिर आपको रिटेंशन में बहुत प्रॉब्लम देगा। सेकेंड थिंग इज जो हमारी आंसर राइटिंग के एसेंशियल्स होते हैं। आंसर राइटिंग में जो बेसिक 3 चीजें हैं वो है फर्स्ट कि हम जो भी क्वेश्चन है उसकी डिमांड एड्रेस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लिखते हैं जो उन्हें पता होगा है, ना कि जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इस वजह से वो पेपर कंप्लीट करने के बाद भी उतने स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना वो शायद डिजर्व करते हो। इसका मेन आंसर है जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसे एड्रेस ना कर पाना। क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करना आपको समझ में आएगा जब आप PYQs को एनालाइज करेंगे। जो भी कीवर्ड्स रहते हैं जैसे क्रिटिकली इलैबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज या फिर इलूसिडेट, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, जो की डिफरेंसेस है हमें पता होना चाहिए। तभी हम जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है या वो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है जबकि टॉपिक शायद सेम है उसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये जो डिमांड वाली चीज है ये ओवर द टाइम डेवलप होती है जब आप PYQs को एनालाइज करेंगे। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं जो विजन IAS है उसके यूट्यूब पर वीडियोस है जिसमें उन्होंने लास्ट 3 इयर्स लास्ट 5 इयर्स ऐसे मीन्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो एनालाइज किए। ये वाले वीडियो से आपको एक हेल्प होगी कि आपको ये पता चलेगा कि जो भी अभी रिसेंट ट्रेंड रहा है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप अपनी जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखिए। सेकेंड पार्ट इज योर स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑफलाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2 से 3 स्टेटमेंट्स लंबे क्वेश्चंस हैं। तो यूजुअली बहुत सारे हिडन सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में एंड हम जब जल्दी क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करते हैं तो हम सिर्फ जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर करते हैं, जबकि जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें सब पार्ट्स के लिए भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं। तो आपको एक जो चीज ट्राई करनी है तो ये है कि जो भी आपके सब पार्ट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करें एंड ये भी आप UPSC जो PYQs प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट आपको दिया गया है, उसको जब आपने पढ़ा तब आपने उसका जो स्ट्रक्चर लिया एंड वो जो स्ट्रक्चर है वो आप क्वेश्चन की ही जो भी टर्मिनोलॉजी है उसे आपको मिमिक करना है। जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है आपको वही अपनी हेडिंग बनानी है एंड उस हेडिंग के अंदर आपको पॉइंट्स में या फिर पैराग्राफ जो भी आपके आंसर राइटिंग हो प्रिफरली उसमें आप उसको स्ट्रक्चर करिए। जब आप क्वेश्चन जब ब्रेक डाउन करके आंसर लिखते हैं तब आपका जो आंसर है वो अपने आप स्ट्रक्चर हो जाता है एंड जो एक जनरल स्ट्रक्चर रहता है जो कि है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, उसमें आप इंट्रो में ये ध्यान रखिए कि जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग इंट्रो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वुमेन का क्वेश्चन GS1 सोसाइटी में पूछा गया है वर्सेस वो GS2 सोशल जस्टिस में पूछा गया है, इनके इंट्रोडक्शन डिफरेंट होंगे। जो भी टोन ऑफ द पेपर या फ्लोर ऑफ द सब्जेक्ट है आप उसको एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में आप आर्टिकल्स, कमिटीज इनसे इंट्रोड्यूस करिए। GS1 में जो सोसाइटी का पोर्शन है या एथिक्स है उसमें आप कोर्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी कोर ऑफ द क्वेश्चन है जैसे इकोनॉमी में फैक्ट्स हैं, डेटा है, आप उससे इंट्रोड्यूस करिए। तो जो भी कॉन्टेक्चुअल इंट्रो है आपको उससे इंट्रोड्यूस करना है। बॉडी में मैंने आपको जैसे बताया क्वेश्चन में सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप हेडिंग्स पाइए और वैसे करिए। कंक्लूजन के लिए हम रेडीमेड कंक्लूजन कुछ टॉपिक्स जो कि रिपीट होते हैं उनके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखिए, जिसमें आप फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन या फिर कोई कमेटी की रिकमेंडेशन हो उसके थ्रू आप उसको कंक्लूड करिए। तो इससे आपका जो राइटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो लास्ट चीज है वो है प्रेजेंटेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी लेजिबिलिटी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल है, नीट है, क्लीन, उसमें स्पेसेस है, तो आपको मोर और लेस प्रेजेंटेशन में ज्यादा इशू नहीं आएगा। एंड उसके अलावा जो वैल्यू एडिशन की चीजें हैं लाइक फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इसके लिए आप जो भी टॉपर कॉपीज हैं उन्हें रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके टेलीग्राम चैनल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल महक जैन मैम है, उनका एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर उन्होंने काफी कुछ वैल्यू एडिशन के मटेरियल डाले हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। बट उसमें आप अपनी ओरिजिनलिटी लीजिए। आप वो मैम के जो भी वैल्यू एडेड नोट्स है उनमें आप टेम्पलेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो मटेरियल है वो आप अपना खुद का यूज करिए। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप एक्चुअल आंसर राइटिंग कैसे करें। मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी थी बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं UPSC के लेवल के PYQs ही सॉल्व करती हूँ तो मेरा एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ आंसर राइटिंग डेवलप होगा। तो मैं और मेरे साथ एक और फ्रेंड थे जिनका भी अटेम्प्ट था, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली रोज 5 बजे के आसपास एक दूसरे को ऑल्टरनेट डेज पे क्वेश्चंस भेजते थे, 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ मेंस एवरी डे। एंड हम टाइमर सेट करके
वो आंसर्स लिखते थे 5:30 या 5:45 तक। एंड उससे ये होता था कि हमें पता नहीं होता था कौन सा क्वेश्चन द अदर पर्सन इज सेंडिंग, तो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है जैसा रियल एग्जाम में है। तो आप वो आंसर करते हैं, प्लस आप यूपीएससी के लेवल ऑफ क्वेश्चंस आंसर करते हैं। नो मैटर आपने कितनी बार पीवाईक्यू पढ़ा हो, आप जब उसको लिखते हैं तो उसका एक अलग ही एलिमेंट होता है। तो जब आप उसको लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड ये लिखने के बाद हम वो आंसर स्कैन करके एक दूसरे को भेजते थे एंड हम वो अपने रिस्पेक्टिव आंसर चेक करते थे। इससे ये होता है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें आप एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे हैं। जब आप किसी दूसरे का क्वेश्चन या आंसर चेक कर रहे हैं तो आपको माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर भी समझ में आता है कि एग्जामिनर इसमें क्या कर रहा है, और एक ऑल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग भी समझ में आती है। जैसे मैंने शायद किसी चीज को थोड़ा लेस इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखा, वेराज इन्होंने कुछ और बेटर इंट्रोडक्शन लिखा, तो वो लिखने को आता है। कोई सब पार्ट है जो मेरे से मिस हो गया बट उन्होंने उसको एड्रेस किया। तो जब आप किसी और एस्पिरेंट का आंसर देखते हैं तो वो आपको रियली हेल्प करता है। बट इसमें आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जिसके साथ भी ये एक्सरसाइज करेंगे वो सिमिलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी होना चाहिए, ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन। इफ इन केस आपके पास ऐसा पीयर नहीं है तो टेलीग्राम पे काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं जहाँ पर ये पीयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तो चैट्स वगैरह में टाइम ना वेस्ट कर आप जो भी ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग एक्सरसाइज है इसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दिस, जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनके जो पीडीएफ है वो काफी सारी वेबसाइट्स पे कुछ टाइम लैग के बाद, जैसे 15-20 डेज के बाद अपलोड हो जाते हैं। तो जो भी करंट रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस हैं अगर उनको आपको चेक करना है तो उनके जो भी मॉडल आंसर्स हैं वो आप एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो भी आपकी आंसर राइटिंग के एसेंशियल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप कोई एक बेंचमार्क लेके चलें तो हमेशा याद रखें कि यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपका सबसे बेस्ट सोर्स है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बिकॉज आप ये जान पाएंगे कि यूपीएससी के जो भी एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या है, और जो भी सिमिलर लाइन ऑफ क्वेश्चंस है उस पर जो भी आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस आंसर्स है वो मॉडल ऑफ फ्रेमवर्क के रूप में यूज हो सकता है।